Hello and welcome back to my channel, guys. As you can see on the screen, this session is about BDES NIFT 2026 creative solved solutions. Also, I'm going to discuss here what are the mistakes you might have done in your exam. And before going to that complete overview and the session, firstly I want to share something with you, and that is, like on my previous video I did share the reviews of my students where I did talk about NIFT GAT paper that they gave, and I have came across huge hatred by, I don't know who these students are, बट इवन उन्होंने मेरा वीडियो भी नहीं देखा. बिफोर इवन वॉचिंग दैट वीडियो दे वेंट टू द कमेंट सेक्शन एंड दे बुलीड मी, लाइक कि मैंने अदर इंस्टीट्यूट्स को एंड उनके बच्चों को हमेशा नीचा दिखाया है, एंड काइंड ऑफ दिस टाइप ऑफ टॉक्स वर गोइंग ऑन. So firstly, let me tell you one thing, and I have never said anything wrong about any institution in any of my video, and I've always appreciated the mentors who are guiding students across India. And see, I know my struggles and I know from where I have come, and this is not my full-time job, guys. I am a working professional, and Avinash sir, we both are working professional. This is something where we love our students, we love to teach our students, we provide these contents, the design based contents to our students, which were like never ever shared before on YouTube. If you go through my playlist, you'll be able to see all these videos on comic strips, storyboards, posters. Please just name one channel on YouTube who selflessly delivers these type of videos to a design aspirant. Guys, just I want to speak one thing, कि please do not disrespect your mentors. Like through this platform, I am providing design oriented information selflessly. Even you can see GK Avinash sir's video, बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि हमें करंट अफेयर्स पे चाहिए सर, हमें रिवर्स ऑफ इंडिया पे चाहिए, हमें टेक्सटाइल फॉर्म्स ऑफ इंडिया पे चाहिए. हम हर वीडियो आपके लिए ही तो बना रहे हैं. और बिफोर स्टार्टिंग दिस इंस्टीट्यूशन, हमारा ये इंस्टीट्यूट शुरू ही हुआ है, 4-5 years हुए हैं, उसके पहले से वी वर ऑन यूट्यूब एंड वी वर डिलीवरिंग. सो before disrespecting us, please kindly go through our, like walk into our shoes and you'll realize कि कितनी मेहनत हमने करी है. और I'm very proud about that कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ और हम एज अ टीम इतनी मेहनत करते हैं और हम यहाँ तक हैं. आप करोगे, आप भी होगे, लेकिन किसी को डिफेम करके, डिस्करेज करके, या फिर आप ऐसे बुली कमेंट्स, आपकी उम्र ही क्या है, आई डोंट नो आप हो भी या कोई और है, पर ये जो कोई भी है, एंड इफ यू आर डूइंग सच थिंग्स, मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम आएगा व्हेन आई विल बी कंप्लेनिंग इट टू साइबर क्राइम. मे बी आई विल डू दैट, एंड डोंट फोर्स मी टू डू दैट ऑल्सो. And yes, let's get back to the solved solution. So as we all know, there were 3 questions asked in the exam, and I'm not going to show you the AI oriented artwork. तो पहले ही मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ ताकि आप कमेंट सेक्शन में आकर के फिर से कोई मुझे कुछ ना बोले कि ये क्या बनाया है, ये अच्छा नहीं लग रहा है. सी, जब एग्ज़ाम्स हो जाते हैं एंड वी आस्क आवर स्टूडेंट्स कि आप मेरे को इसका तीनों का सोल्यूशन बना करके दे दो, नो वन इज़ इन द मूड एक्चुअली टू ड्रॉ एंड डू द सॉल्यूशंस ऑल ओवर अगेन. इट्स अ फैक्ट. तो 1-2 बच्चों ने जो भी मुझे बना करके भेजा है, कंसिडर दैट एज एन
आइडिया कि आप कुछ ऐसा कर सकते थे, ठीक है. एंड देन लुक इनटू दीज सॉल्यूशंस. आई एम आल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट few of the solutions that also went wrong, or maybe you misunderstood the question. So that is very important. Let's go to the first question. The question was, draw a bird feeder using the shapes given below. You can change the size of the shape and also you can repeat the shape as many times you want. अच्छा, ये मैं बता दूँ 2024 में I guess इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका था. अगर आपने PYQ सॉल्व किए थे तो बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि आप शेप को घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, रिपीट कर सकते हो as many times you want, but it is compulsory to use all the shapes at least once. ठीक है, तो मतलब सबको यूज करना है. बर्ड फीडर शुड बी डिजाइन फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ पे लिखा हुआ है आउटसाइड द विंडो ऑफ द मेडिटेशन रूम. ठीक है, आउटसाइड द विंडो ऑफ द रूफटॉप कैफे, आउटसाइड द विंडो ऑफ द नॉर्मल रूम, outside the window of the elderly people room. Now the solution which I am going to show is only a product जो आपको यहाँ पे दिख रहा है. आप देख सकते हो कि सारे शेप्स इसमें यूज किए हुए हैं, ठीक है, और ये प्रॉपर बर्ड फीडर यहाँ पे बना हुआ है. ठीक है, यहाँ पे राइटअप भी लिखा हुआ है. अब दिस वॉज डन इन हरी. ठीक है, जिस भी बच्चे को मैंने बोला था, शी जस्ट रिस्पेक्टेड मी कि उसने ये काम मुझे करके दिया, विच आई अप्रिशिएट हर अलॉट. और उसने सही बनाया है, नो डाउट. उसने सारे शेप्स को यूज़ किया है, मल्टीपल टाइम्स यूज़ किया है, स्केल अप किया है, स्केल डाउन किया है. नाउ द क्वेश्चन इज़ कि अगर ये 40 मार्क्स का होता तो मैं इसमें कितने मार्क्स देती. आई डोंट नो इस ऑफ 30 मार्क्स और 40 मार्क्स, आई गेस 30 मार्क्स का था. अब मैं आपको बोलूँगी कि इसके क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो. आउटसाइड द विंडो ऑफ द मेडिटेशन रूम, outside the window of a rooftop cafe, outside the window of a normal room, outside the window of the elderly room. As a product it is fine. Shapes has been used, bird feeder has been shown and colors भी use किया हुआ है. Also question में मेरे हिसाब से मुझे अभी ये पता चला कुछ टाइम पहले कि ये भी मेंशन था कि मेंशन द टाइटल, मेंशन द सब टाइटल, या जो भी ये सब कुछ मेंशन था. सबसे पहली चीज़ क्या क्या ज़रूरी था, आप कौन सा एरिया चूज़ कर रहे हो उसको लिखना बहुत ज़रूरी है. आप क्या बना रहे हो वो आपने मेंशन कर दिया. इसके क्या वर्किंग एरियाज़ है, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, आपने वो भी बता दिया. एक क्वेश्चन है जो मुझे आपसे पूछना है, आप में से कितने लोगों ने ऐसा काम किया होगा, विच इज़ करेक्ट, बट अकॉर्डिंग टू मी पार्शियली ये थोड़ा सा इसमें और भी कुछ हो सकता था. ठीक है, क्या हो सकता था? आउटसाइड द विंडो ऑफ अ नॉर्मल रूम, आउटसाइड द विंडो ऑफ अ रूफटॉप कैफे. एक आउटसाइड एक विंडो का व्यू तो बन सकता था, उसके आउटसाइड ये प्रोडक्ट रखा हुआ होता और उस विंडो के अंदर हम एक थोड़ा सा इंटीरियर दिखा सकते थे ऑफ अ मेडिटेशन रूम, ऑफ अ रूफटॉप कैफे, ऑफ अ नॉर्मल रूम और ऑफ अ एल्डरली पीपल रूम. ठीक है, इससे क्या होता, जो भी क्वेश्चन की डिमांड है वो कंप्लीटली फुलफिल हो जाती. ठीक है, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे यू ऑल, कि ये सब सारे शेप्स यूज करके ये बना लेना इज कंप्लीटली फाइन. बट वो जो 4 मार्क्स एक्स्ट्रा, 5 मार्क्स एक्स्ट्रा, 7 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वो क्वेश्चन के अलग पार्ट से भी मिल रहा है. नाउ ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया हो कि मेन प्रोडक्ट को उन्होंने ऐसा दिखाया हो और फ्रंट और बैक में उन्होंने एक बैक व्यू में या उन्होंने एक वन ऑफ द एडिशनल व्यूज में थोड़ा सा पोर्शन वो विंडो का और उसके बाहर की वो मेडिटेशन रूम के बाहर का ये बर्ड फीडर है, उन्होंने ऐसा दिखा दिया हो. अगर आपने भी ऐसा किया है आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे. सो दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन विच आई वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल. Let's go to the second question. Draw a scene of a festive celebration in one of the following areas. अब यहाँ पे मैं आपसे पहले ये बोलना चाहूँगी कि देखो कहीं पे गूगल या कहीं पे ऐसा लिख करके मेरे पास क्वेश्चंस नहीं आया है. ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था वो मेरे को नहीं आया है. ये जो क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ मैंने मल्टीपल स्टूडेंट से पूछा है, उसके बाद ये क्वेश्चन लिखा गया है. फेस्टिव सेलिब्रेशन
मुझे ऐसा लगता है कि 99% क्वेश्चन में था, जिसको बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ओवरलुक कर दिया है। Festive celebration in one of the following areas. The first one was marketplace at a village. This was the question जो मैंने बहुत पहले और हर साल अपने बच्चों को कराया है कि तुम फेस्टिवल्स तो करते हो, मार्केट प्लेस भी करते हो, विलेजेस का भी करते हो, सिटीज का भी करते हो, व्हाट इफ अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं। रिवर बैंक फेस्टिवल ये भी हमने किया है। नेचर रिट्रीट इन फॉरेस्ट, 3 एरियाज आपको बताए गए हैं, लेकिन इन तीनों में क्या कॉमन था? फेस्टिव सेलिब्रेशन। कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा और उन्होंने मार्केट प्लेस एट अ विलेज भी बनाया। कुछ बच्चों ने रिवर बैंक फेस्टिवल में कंफ्यूज हो गए हैं कि वो क्या बना सकते हैं। रिवर बैंक फेस्टिवल में ओनम में कंफ्यूज हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो रिवर पे, अभी गंगा स्नान, अभी कुंभ भी हुआ था, ये सारे फेस्टिवल्स का पार्ट हो सकता है। हमारे यहाँ बिहार में छठ फेस्टिवल मनाते हैं, इसको भी आप रिवर बैंक फेस्टिवल में शो कर सकते थे। नेचर रिट्रीट इन फॉरेस्ट का मतलब क्या है? जब हम नेचर की पूजा कर रहे हैं उस फेस्टिवल को क्या कहते हैं? एक्चुअली जो छठ का हमारा फेस्टिवल है वो रिवर बैंक फेस्टिवल में भी आएगा और नेचर रिट्रीट का भी आएगा, बट इन फॉरेस्ट नहीं आएगा। तो ये थर्ड ऑप्शन बहुत लोगों ने चूज नहीं किया होगा। सॉरी, मार्केट प्लेस एट विलेज, ये क्वेश्चन आप चूज कर सकते थे और ये बहुत इजीली बन सकता था। दिवाली के टाइम में या होली के टाइम में जो विलेज का मार्केट प्लेस है वो कैसा होता है? तो विलेज के मार्केट प्लेस में आप मार्केट प्लेस में अगर मैं दिवाली ले रही हूँ तो वो दिया, वो क्रैकर्स, वो सारी चीजें दिखाऊंगी। इसके अलावा क्या दिखा सकते हैं? आप सजावट दिखा सकते हो, बंटिंग्स दिखा सकते हो, ठीक है। तो फेस्टिवल सेलिब्रेशन में अब वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स, उन्होंने ये हमें करके भेजा था। ये तब की बात है जब मैंने ये क्वेश्चन फेस्टिव सेलिब्रेशन, ये वर्ड मिसिंग था। जब मैंने ये सॉल्यूशन देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये आपका मार्केट प्लेस इन विलेजेस को ज्यादा पोर्ट्रे कर रहा है। सो इस क्वेश्चन को मैं पार्शियली करेक्ट और थोड़ा सा पार्शियली मैं रॉन्ग भी बोलूंगी। मतलब मैं ये तो बिल्कुल नहीं कह रही कि आपके पूरे मार्क्स कट जाएंगे, बट हाँ आपके कुछ मार्क्स कटेंगे क्योंकि यहाँ पे फेस्टिव सेलिब्रेशन नहीं है। ये फेस्टिव सेलिब्रेशंस कंप्लीटली हो जाता जब मैंने यहाँ से वो डेकोरेटिव रिबन्स लगा दिए होते, लाइटिंग फिक्सचर लगा दिया होता, कहीं पे दिया, कहीं पे क्रैकर्स, कहीं पे मिठाइयाँ दिखाई होती। फेस्टिवल्स में यूजुअली ये होता है। सो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जिसका मैं आपको रिवर बैंक फेस्टिवल का सोल्यूशन दिखाना चाहूंगी, जो अभी से 3-4 इयर्स पहले भी मेरे स्टूडेंट्स ने किया था। एंड ये फ्रेम मेरे इंस्टीट्यूट में मैं हमेशा रखती हूँ, जो बच्चों का काम है उसको फ्रेम करके। आप यहाँ पे देखो, अगर ये आपको विजिबल है, दिस इज महाशिवरात्रि एट द बैंक एंड इट्स अ फेस्टिवल। ये पूरा आपका मंदिर का भी व्यू है, जो इसके पिलर्स हैं उससे शो हो रहा है, और ये आपका शिवलिंग का व्यू है। तो महाशिवरात्रि एट द बैंक ऑफ रिवर, ये कंप्लीटली करेक्ट आंसर है आपका रिवर बैंक फेस्टिवल का। सो इस टाइप से आपको ये सोल्यूशन करना था। एंड आई थिंक कि वन ऑफ द क्वेश्चन में, शायद इसी क्वेश्चन में, इट वाज आस्क्ड टू यूज पेंसिल कलर्स। सो यू कैन सी दिस अगेन। मैं इसकी फुल पिक्चर भी, अगर ये आपको दिख रहा है, इट्स विजिबल, इट्स फाइन। सो दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन। नाउ लेट्स गो टू द थर्ड क्वेश्चन, एंड दैट इज टेक द इंस्पिरेशन फ्रॉम एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट, वाटर टैप, स्टूल, बाइसिकल। अब क्या लिखा है? टेक द इंस्पिरेशन। अगर आपने डिजाइन इंस्पिरेशन मेरा जो सेशन है यूट्यूब का, अगर आपने वो देखा है, आपको समझ में आ जाएगा इंस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। कि आप ऑब्जेक्ट को एज इट इज ना लेकर के आप उसके कुछ पार्ट्स को भी ले सकते हो, आप उसके स्ट्रक्चर को भी ले सकते हो। तो वाटर टैप का क्या स्ट्रक्चर होता है, स्टूल का क्या स्ट्रक्चर होता है, बाइसिकल का क्या डिजाइन होता है, उसको इंस्पिरेशन लेकर के design and draw one product for the users given below and also show the product is used by the chosen user। मतलब सिर्फ इससे इंस्पायर्ड प्रोडक्ट ही नहीं बनाना था, आपको ये भी दिखाना था कि वो प्रोफेशनल
उसको यूज कैसे कर रहा है। सो आप समझो इस क्वेश्चन को, प्रोडक्ट डिजाइन भी है आपका, इसमें डिजाइन इंस्पिरेशन भी है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट ड्राइंग, ये तीनों चीज इसमें आ जा रही है। अ पॉसिबल सोल्यूशन फॉर स्ट्रीट वेंडर, उसने लिखा है फोकसिंग ऑन यूजर कंफर्ट, पोर्टेबिलिटी, स्पेशल फीचर्स एंड यूजर पोस्चर, पोर्टेबल फ्लेक्सी चेयर एंड एक्सपैंडेबल चेयर फॉर स्ट्रीट वेंडर्स। अब आप देखो उसी स्टूल से वो चेयर इंस्पायर्ड, वो चेयर बनी, उसका फ्रंट व्यू, उसका साइड व्यू देखो, एक यूजर उसको यूज कैसे करके दिखा रहा है, यहाँ पे वो भी दिखाया गया है क्योंकि ये क्वेश्चन में डिमांडेड है। आप इसका यूजर देख सकते हो कि ये कहाँ के लिए, पानी पूरी स्टॉल के लिए ये बनाया गया है, कोई चाट का वेंडर भी हो सकता है। तो दिस इज हाउ द थर्ड क्वेश्चन शुड बी। अगेन ये भी थोड़ा सा रफ है क्योंकि जिस भी स्टूडेंट को मैंने बोला था उन्होंने एटलीस्ट मुझे बना करके दिया है, जस्ट फॉर अ रफ आइडिया मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपने इस टाइप से इसका सॉल्यूशन किया है, यू आर गोइंग टू गेट मार्क्स ऑन इट डेफिनेटली। सो दीज वर द 3 questions guys that I wanted to show you all and discuss about the same. If you have any queries in mind or anything you want to discuss or ask, you can always call me on the number which is 8700323087. Not me, because obviously this is not my number, but my team's number. And if you want to get enrolled for next year 2027, or if you want to join situation test classes for NIFT or studio test classes for NID, this is the number you can call us here. My team will get in touch with you. Also, you can always see our sessions on situation test and NID studio test. You'll get to see how we conduct our classes. So that's it guys. Please take care and spread happiness, spread peace. That's all we need exactly अभी आज के टाइम पे। And this is your mentor signing off. Take care. Bye bye.